We have already seen the concept of CNC working, and let us give a glance on what we have seen, what we have studied in the previous lecture. First of all, we had seen manual part programming. Okay, what is manual part programming? In manual part programming, we have codes from A to Z, out of which we are studying G code and M code. This is one. Alright, this is one of the language. This is one of the language that is there in the CNC working. Now, A to Z codes are there. There are many codes, multiple languages. We have seen one language, that is manual part programming, under which comes G code and M code. अब G code के अंदर we have G00 to G99, right? And in M code we have M00 to M99. These are everything that is included in the G code and M code, which is included in the coding part of manual part programming. Right now, these codes are basically similar to the alphabet A to Z. A to Z. Just a second. Right. A to Z are English alphabets. Do any one of you know what is the meaning of A? A का मतलब क्या होता है? और B का मतलब क्या होता है? और C का मतलब? Any one of you? 26 26? सर वो ए को ऐसा मतलब अगर इसमें डिजिट्स में बोलते तो 26 बोलते हैं ना उसको. B का मतलब क्या होता है? What is B? There is no meaning as such of alphabet A, alphabet B, alphabet C. But when combined, A, E, R, O, P, L, A, N, E, these are combination, or this word is a combination of many alphabets. This word is a combination of many alphabets. Example, any word in the entire universe which is written in English will be a composition and permutation combination of English alphabet, which when taken individually have no meaning. A doesn't have any meaning, B does. अच्छा, is there any answer to if you ask sir A ऐसे क्यों लिखते हैं और A ऐसे क्यों लिखते हैं? What is the reason for you to write A in this manner, A in this manner, or A in this manner? There is no reason. It was तो decided. सर डिफरेंट फॉन्ट है ना. हाँ, वो फॉन्ट है, बट एज सच ऐसे क्यों लिखते हैं? इस अल्फाबेट को अगर ऐसे लिखा तो ए क्यों बोलते हैं? कुछ और भी बोल सकते थे ना. इसको बी क्यों बोलते हैं? कुछ और भी बोल सकते थे ना. So this is not decided by us. This is pre-decided by someone who had introduced this language into this world. Similarly, G00 को rapid motion क्यों बोलते हैं? It has no answer. G01 को linear interpolation क्यों बोलते हैं? It has no answer. Similarly, G02 को, G03 को circular interpolation क्यों बोलते हैं? Why is it called circular interpolation? As such, there is no answer, but it was decided by, or it was designed in such a way, or it was decided by someone who had introduced this language into this world.
राइट। तो उसने बोला कि G01 को मैं क्या करता हूँ, G01 को लीनियर इंटरपोलेशन कमांड नाम दे देता हूँ, तो नाउ इट इज G01. So there is no question as in sir G01 क्यों, why is not G02? We could have taken G02 as linear interpolation. Yes, definitely we could have taken it, but it is only that if you design something, it is according to you who will decide G01 will be this, G02 will be this, G03 and so on. But now in अब अगर ऐसी situation होती, if this was the case wherein you yourself would have decided G01 will be linear interpolation, G03 will be tool offset and something so on, so that would have been a problem because हर जगह कोड्स अलग हो जाते हैं, कमांड्स अलग हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे पूछूं इन सिमिलर टू द इंग्लिश अल्फाबेट, आई टेल यू व्हाट इज ए, so what is A for, what is A I don't know, but what is A for? UK A for apple, someone will say A for aeroplane. All right, A for matlab anything starting with A, but this is not the case with G for, G01 for. It is standard. मतलब आप यहाँ पे at your place wherever you are right now, if and anyone you ask anyone who is having knowledge of G code and M code, CNC part programming, then he or she will answer you G01 is definitely linear interpolation. And you ask anyone from the entire planet के अगर जिसको नॉलेज है CNC कोडिंग के and who is working on manual part programming which is comprising of G code and M code, so G01 will have the same value or will have the same meaning. It is similar to standardizing something that is like 1 mm. 1 mm at your place is a definite length, 1 mm at the other end of the earth will be same length. Matlab this is called standardization of the data. So G code, M code have been standardized so that there is no confusion related to the code. मतलब आपने अगर ये G code, M code याद कर लिया, तो it is definite that you can work on any platform or any CNC machine having G code and M code installed in it. तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, G code, M code अगर आपको आता है तो you are employable. Right, you can work on the shop floor on the CNC machine provided you know the concepts. अब अगर English language है, English language को अगर मुझे लिखना है तो it is compulsory for me to remember A to Z. Similarly अगर मुझे G code M code में program लिखना है तो now it is compulsory for me to remember G code and M code. Just a second, there is some. Yes, now लास्ट टाइम, अभी तो मैंने सिर्फ ओवरव्यू दिया बिकॉज लास्ट टाइम हम इससे ज्यादा आगे बढ़ चुके थे इस कॉन्सेप्ट में. लास्ट टाइम वी हैड सीन सिंपल सा रेक्टेंगल एंड उसके अंदर जो कोऑर्डिनेट एक्सेस है हमने वो सारा का सारा देख लिया था. लेट मी रिवाइज इट फॉर यू. राइट, दिस इज द फ्रंट व्यू. This is some system of height 20. This is 100 and this is 150. ये एक रेक्टेंगल है जिसकी हाइट मतलब थिकनेस ऑफ द वर्कपीस. अब लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इसका टूल पोजीशन क्या होगा. लेट मी रिपीट इट फॉर यू. अगर ये टूल पोजीशन है, आई हैड शोन यू द वीडियो, रिमेंबर वो वीडियो दिखाया था अल्फाबेट का. यस सर. हाँ, तो ये टूल पोजीशन बराबर है
कि इसकी सेंटर लाइन से ये टूल पोजीशन बराबर है। कौन सा टूल पोजीशन? पोजीशन ए बराबर है कि ये वाली पोजीशन बराबर है, पहले वाली ए वाली बराबर ए ए ए बराबर है? व्हाई इज द रीजन? व्हाट सरकमफ्रेंस से कट करते हैं ना। सर्कमफ्रेंस से कट करता है। हमने अगर टिप को ये एज से अलाइन किया तो ये जो कटिंग है वो होगी यहाँ से। ठीक है, अगर यहाँ पे भी अगर हम सर्कमफ्रेंस को छोड़ के अगर हम टिप से अलाइन करते तो ये कटिंग होती यहाँ से। तो ये जो डिस्टेंस हो जाता, ये अगर समझो डायमीटर 10 mm का है मेरा टूल, तो ये हो जाता 5, ये हो जाता 5, क्योंकि रेडियस है ना यहाँ से, ये और ये रेडियस। तो दिस वुड हैव बीन reduced to 90 mm. That is not the case that we want. We want the actual dimension that has been given to us. तो उस केस में हमको क्या करना है? उस केस में हमको ये करना है कि इस केस में हमको क्या करना है? वी हैव टू टेक द tool outside the workpiece because it is cutting from the periphery, that is the circumference of the circle. इसके लिए हम टूल पोजीशन मार्क करते हैं। सबसे पहले वेरी फर्स्ट स्टेप इज मार्किंग टूल पोजीशन, कि वो कहाँ पे हॉल्ट। सर यस बोलिए। वो हेलो सर, मैं क्या बोल रहा है, अगर देखो ना हम लोग जो एक्चुअल में वर्किंग होता है टूल का, तो फिर सर वो अंदर से कटिंग करके हो जाता है, तो जो पीस रहता है वो अंदर गिर जाता है ना। ऐसा बाहर से कटिंग करेंगे तो बाहर का वर्क पीस ज्यादा जाएगा ना, ऐसा अंदर से कटिंग करेंगे तो अपने को मतलब वेस्ट कम होएगा ना वर्क पीस का। नहीं समझा। नहीं समझे? समझो सर, अपने पास एक मतलब शीट है, ये चलो ये तो फिर शीट है, हम लोग को अगर उसके अंदर ये बहुत शीट सारे, है, हाँ ये बहुत शीट है। अगर हाँ उसके अंदर अगर मेरे को बहुत सारा टूल कट करना है, तो फिर सर मैं इनसाइड से कट करूंगा ना। हाँ तो वही तो कर रहे हैं बेटा हम यहाँ पे। ये जो हमारा वर्क पीस है, हमको मल्टीपल वर्क पीस कट करना है, समझो, हाँ है ना। तो हमने एक वर्क पीस हाँ सेलेक्ट किया और ये जो टूल है वो तो यहाँ पे रहेगा ना पोजिशनिंग। सर, टूल को अंदर भी रख सकते हैं ना हम लोग। अब डिपेंड करता है तुमको क्या काटना है। तुमको वर्क पीस, तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट क्या है? ये है कि ये है? शीट जिसपे काम ये शीट तुम्हारा यही फाइनल वाला प्रोडक्ट जिसपे है? आपने सेकंड, हाँ ये टिक वाला कि क्रॉस वाला फाइनल प्रोडक्ट क्या है? क्रॉस वाला, क्रॉस वाला। क्रॉस वाला है तो फिर आपका वर्क पीस टूल अंदर रहेगा, बिकॉज मेरा ये वाला जो फाइनल लाइन है, हाँ जो फाइनल लाइन होती है उसके बाहर टूल रहता है। ठीक है। हाँ सर। और एक और बात बोलूं कि अगर ये वाला फाइनल ऑब्जेक्ट है तो टूल यहाँ पे अगर रहा तो यहाँ पे कभी भी शार्प एज नहीं आएगा, ऐसा वाला इधर पे कर्व आएगा। ओके। अगर शार्प एज चाहिए हमको तो हमको टूल को आगे भेजना पड़ेगा। मैंने आपको आपकी बुक होल्ड करने के लिए बोला था, अपनी बुक होल्ड करो और फिंगर को एज पे रोटेट करो। रोटेट मतलब मूव करो। तो जब तक आप ये एज क्लियर नहीं करोगे, ये पर्टिकुलर लाइन, तब तक आपको ये शार्प एज नहीं मिलेगा। और अगर आपकी उंगली या टूल ये पर्टिकुलर लोकेशन पे इधर पे रुक गया तो कटिंग हो जाएगी यहाँ से, विच इज़ नॉट दैट वी वांट। समझा सबको? सबको समझा? हाँ सर। तो मूविंग ऑन। दिस इज द लोकेशन ऑफ द टूल। अब क्योंकि मेरे टूल का डायामीटर 10 है,
I am using a tool that is T01 of diameter 10 mm. Alright. अब क्योंकि ये टूल का डायमीटर 10 mm है और ये जो सेक्शन है, मैं ये जूम कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो सेक्शन है, अगर ये 0,0 है, जो मैंने आपको ऑलरेडी कोऑर्डिनेट सिस्टम बता दिया था, ये वर्क पीस का 0,0 है और ये वर्क टेबल का 0,0 है। मेरे पास एक वर्क टेबल है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर वर्क पीस रखा हुआ है, तो ये टेबल का 0,0 है एंड दिस इज वर्क टेबल का 0,0। सॉरी, ये टू वर्क पीस का 0,0 है और ये टेबल का 0,0 है। समझे बात को? चलो आपके लिए और आसान कर देता हूँ। आपके पास ये स्क्रीन है, आप मेरी स्क्रीन यहाँ पे जो मैंने शेयर किया है वो देख रहे हो। अब ये स्क्रीन का 0,0 कहाँ पे है? ये जो माउस मूव हो रहा है, ये किसके रेफरेंस से मूव हो रहा है? स्क्रीन के पास भी तो कुछ 0,0 होगा, करेक्ट? सर विंडोज का सिंबल है ना, उसके यहाँ से। ओके, वहाँ अगर समझो अज्यूम करते हैं वहाँ पे होता है, अज्यूम, बिकॉज वहाँ पे होता नहीं है, इट इज एट सम अदर। अगर हम कन्वेंशनल मेथड अजम्पशन में जाएं तो विंडोज का जो सिंबल है यहाँ पे हम लोअर लेफ्ट कॉर्नर को 0,0 बोलते हैं, ये स्क्रीन का, उसके रेफरेंस से हमारा ये जो माउस है वो मूव हो रहा है, उसको कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं। मगर ये जो स्क्रीन है इसके ऊपर अगर मैंने एक और कोऑर्डिनेट एक्सेस बनाया और इसके अंदर एक वर्कपीस बनाया और मैंने इसको लेबल किया यहाँ पे 2,2, तो ये किसके रेफरेंस से हो रहा है? ये 0,0 के रेफरेंस से कि ये मेरे स्क्रीन के 0,0 से रेफरेंस से? सर जो बनाए है उसके रेफरेंस से, है ना, जो ग्राफ बनाया है, जो एक्सेस बनाया उसके रेफरेंस से 2,2 है ना। सिमिलरली जब हम वर्क टेबल पे ऑब्जेक्ट रखते हैं, जब हम वर्क टेबल पे, ये जो मेरा वर्क टेबल है इसके ऊपर अगर मैंने ऑब्जेक्ट रखा तो ऑब्जेक्ट का जो 0,0 है दैट इज डिफरेंट एंड वर्क टेबल का जो 0,0 है दैट इज डिफरेंट। तो हम अब वर्क टेबल के 0 को रेफरेंस नहीं लेंगे, हम अगर टूल मूव करना है तो किस पे मूव करना है, किस पे ऑपरेशन हो रहा है? वर्क पीस पे। तो हम वर्क पीस के 0,0 से रेफरेंस लेके टूल को आगे पीछे जहां पे भी जाना है वो हम लेके जाएंगे। समझे बात को? क्लियर टू एवरीवन? यस सर। तो अब हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कि हम वर्क पीस का 0,0 पहले अलाइन कर लें। तो ये जो वर्क पीस का 0,0 है वो कहाँ पे? इधर पे होगा, ये वाला, ये दिस इज व्हाट 0,0 बराबर, yes or no? If this is 0,0 Yes, sir. and my tool is here, which I label it as A, तो A का कोऑर्डिनेट कितना होगा अगर इसका डायमीटर 10 है? तो -5,0, फिर से बोलो। -5,0, ये हुआ x एक्सिस में -5, ये हुआ y एक्सिस में -5 इट विल बी -5, -5। ओके। ठीक है, दिस इज अ सर्कल और उसका सेंटर है, तो इट इज रेडियस वी आर टॉकिंग। तो x एक्सिस में -5 और y एक्सिस में -5, तो दिस द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट a will be -5, -5, and b will be how much then? -105, -5, -105, -5. 105, यहाँ तक 100 है, ये -5। आगे गया तो यहाँ पे हो जाता है 105, -5, बिकॉज वो नीचे है, यहाँ पे है नीचे, तो -5। वैसे ही C का, मैंने याद रखना, मैंने वर्कपीस को लेबल नहीं कर रहा हूँ, मैं टूल के टिप को लेबल कर रहा हूँ। आई एम गिविंग यू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टूल टिप because the movement that is taking place is the tool that is moving and not the workpiece. Workpiece is stationary. We have to give the tool
a coordinate or a system wherein it will be moving and cutting the object. तो ये जो C है इसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 105, 155. 155 155. D का कोऑर्डिनेट क्या होगा? -5, 155. 155. राइट, ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हमको यहाँ पे कुछ तो लेबलिंग करनी है और कुछ तो इंडिकेशन बनाना है। तो ये हम बनाते हैं वर्कपीस का लोकेशन। ठीक है, अब ये वर्कपीस का जो लोकेशन है, ये वर्कपीस का जो लोकेशन है, इसमें हम z एक्सिस लेबल करते हैं, z एक्सिस, और इसको वर्कपीस से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ऊपर रखते हैं। ये मैंने आपको लास्ट टाइम समझा दिया था कि हम कितना डिस्टेंस रखते हैं, 2 mm, राइट, 2 mm। ये क्यों रखते हैं? Because when the workpiece and the tool, because when the workpiece is stationary and tool is moving in order to change its location, tool अगर अपनी location change कर रहा है और movement दे रहा है तो उसको workpiece से थोड़ा ऊपर रख के हमको movement देना है, that is called positioning XY पे। Let me show you one simple example जो कि I think मैंने last time भी आप लोग को दिखाया था, but still I will show it to you again। ये देखिए, ये मूवमेंट दे रहा है, ये सरकमफेरेंस से काट रहा है। ठीक है, अब आई थिंक इसको क्या बोलते हैं मालूम है? फ्लूट बोलते हैं, फ्लूट, 2 फ्लूट, 3 फ्लूट, पता है आप लोगों को? नहीं। Yes, sir. आई एम सर्चिंग फॉर अ ये होता है जिग। दिस इज कॉल्ड अ जिग और अ फिक्सचर। इसको जिग बोलते हैं कि फिक्सचर बोलते हैं? Fixture, ना sir. फिक्सचर।
बिकॉज इट इज ओनली होल्डिंग द वर्क पीस। अब देखो यहां से ये मूवमेंट देखो, दिस विल हेल्प यू। ये जो डेप्थ है वर्क पीस की दैट इज कॉल्ड एज द जेड एक्सिस। अच्छा अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे गौर करो, उसने जब अपनी पोजीशन चेंज करी, जब अपनी पोजीशन चेंज करी तो वर्क पीस को उसने छोड़ दिया, वर्क पीस को छोड़ दिया। देखो अभी ये नीचे जाएगा ना, उसने वर्क पीस को छोड़ दिया, ऊपर गया, पोजीशन पे गया, फिर डेप्थ में गया। अभी देखना, गौर करो मूवमेंट को, देखो वर्क पीस छोड़ा, पोजीशन पे गया, फिर उसने दूसरी पोजीशन ली, फिर डेप्थ में गया। इसकी मूवमेंट देखो, सरकमफ्रेंस पे अपना पेरी पेरी पे मूवमेंट हो रही है। अब देखो उसने क्या किया, ये देखो, ये देखो, ये पॉज क्यों नहीं होता? सॉ द मूवमेंट हाँ जेड सर। एक्सिस पे वो ऊपर है। अभी देखो फिर से इसका मूवमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो इट विल लीव द वर्क पीस। देखिए वर्क पीस लीव किया, देखिए आप पोजीशन किया वापस से, फिर गया ऊपर, गया पोजीशन चेंज किया, फिर डेप्थ में गया। अब ये वर्क पीस छोड़ेगा उसको, टूल वर्क पीस को छोड़ेगा, ऊपर आएगा, राइट। तो दिस, अब इससे रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे न्यूमेरिकल का। अब ये सिंपल सा वर्क पीस है जिसको हम ऊपर से देख रहे हैं, दिस इज द टॉप व्यू। ये जो टूल है ये वर्क पीस के ऊपर है 2 mm, in order to avoid unwanted interaction between the tool and the workpiece। तो हम 2 mm का एक कन्वीनियंट पोजीशन पे, एक कन्वीनियंट न्यूमेरिकल डेटा पे हम रुकते हैं ना। अब अगर ये टूल को टोटल ट्रैवल करना है, अगर वर्कपीस के डेप्थ में जाना है तो टूल को कितना ट्रैवल करना पड़ेगा? तो जितना भी रहेगा वो +2 करेंगे उसमें। 22 इंटू 2। सर इंटू ज्यादा हो जाएगा ना, 200 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। हाँ इंटू 2 कौन बोला? आप बोलो। 22 बोले सर। अच्छा 22 सब +2 ना। +2, हाँ। 22 बोले क्या? हाँ सर। हाँ मेरे को सर। इंटू 2 सुनाई दिया। ऑलराइट, दिस विल बी टोटल ट्रैवल विल बी हाउ मच? अगर टूल यहाँ पे है, टूल ये पोजीशन पे, राइट,
तो उसको 22 नीचे जाना पड़ेगा, करेक्ट। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 22। बट मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो कन्वीनियंट पोजीशन है और जो कन्वेंशन हम यूज करते हैं, दैट इज व्हेनेवर द टूल इज एंटरिंग इनटू द वर्कपीस इट हैज टू बी नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज एंटरिंग द वर्कपीस ना, मतलब ये हो गया -22 बराबर। माइनस। अच्छा, अगर ये -22 है तो इसका जीरो कहाँ पे होगा, जीरो यहाँ पे होगा कि यहाँ पे होगा? टूल के Point. पॉइंट पे। ऊपर होएगा, टूल के पॉइंट पे होएगा, यस जहाँ अमन, से अमन ना सर। किधर होगा जीरो, सर वर्कपीस। टूल के पॉइंट पे होएगा। हाँ, अब अगर ये 0 0 है, ये 0 है, तभी तो ये -1 -2 -3 अप टू 22 -22 हुआ ना। वैसे ही अगर टूल का टिप यहाँ पे है और मेरे को उसको ऊपर लेके जाना है यहाँ से यहाँ ये पोजीशन पे, तो मेरे को z कितना देना पड़ेगा, 22 पॉजिटिव। +22, करेक्ट, तब जाके वो 0 होगा। गॉट इट, समझे सब लोग? हाँ सर। तो हम z एक्सेस जो यूज करेंगे उसका जो 0 रेफरेंस पॉइंट है z एक्सेस का, हमको x और y का तो मालूम पड़ गया, इधर है ये लोकेशन पे x और y है, मगर क्या ये लोकेशन पे z0 है क्या? आई नो दिस लोकेशन इज ये वाला लोकेशन, ये वाला, तो आई नो दिस लोकेशन इज x0 y0, but is it z0? No, it is not z0, it is z-2. This location is called how much, z-2, because this location is z0। समझे, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ सर। दिस इज z0। अब हमारे पास वेरिएंट होते हैं, हमने जरूरी नहीं है ना कि हमारे पास जो वर्कपीस होगा वो स्ट्रेट होगा, एक फ्लैट सरफेस होगा। द वर्कपीस कुड बी ऐसा कुछ, है ना, जिसके ऊपर टूल मूव हो रहा है। तो देर आर हाइट दैट वी कैन, एक कन्वीनियंट, ये कन्वेंशन है, एक कन्वेंशन है जो कि हम यूज करते हैं, कोई कोई यूज करता है कोई कोई नहीं करता है, तो इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर एवरीवन टू यूज, बट वी कैन राइट द हाईएस्ट जो पोजीशन है ना वर्कपीस का, उसको हम हाइट 01 यूज कर सकते हैं, तो सेकेंड हाईएस्ट को हाइट 02 बोल सकते हैं, थर्ड हाईएस्ट को हाइट 03 एंड हाइट 04। सिमिलरली अगर मैं इसको लेबल करना चाहूँ तो आई कैन लेबल इट एज H01, Z0 H01 can be the labeled position of this coordinate or the labeled address of this coordinate. This can be labeled as H01, तो मैं उसको प्री डिफाइन कर सकता हूँ। तो दिस इज हाइट 01 ऑफ द वर्क पीस, बिकॉज इसमें एक ही हाइट है, इसमें मल्टीपल हाइट नहीं है, तो आई कैन लेबल Z0 एज H01, या पूरा बोल सकता हूँ Z0 H01। समझे, कहीं कहीं बोलते हैं कहीं कहीं नहीं बोलते, आई एम गिविंग यू इन्फॉर्मेशन। तो आई लेबल Z0 एज H01। समझा, किसी को डाउट कुछ, एनी डाउट? सर एक बार रिपीट करो, Z01 मतलब स्टार्टिंग का ना? Z01 is the starting position of the tool, zero position, Z0 H01, ठीक है, that is the height number 1। अगर मल्टीपल हाइट होता है तो, अगर आप डायरेक्ट Z0 लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, Z0 H01 लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। अब ये तो हमारा हो गया पूरा का पूरा सिस्टम का लेआउट, मतलब हमारे पास ऑपरेशन है। अब हम डिसाइड करेंगे कि हम पाथ कौन सा फॉलो करते हैं, हम पाथ कौन सा फॉलो करेंगे। तो इसके अंदर वी विल फॉलो, पाथ कौन सा फॉलो करेंगे हम, मैंने लास्ट A टाइम to सबको B, एक्सप्लेन B कर to दिया था, C, A B C D C A. to D, A to B, B to C, A to B, C to D and D to A। D in to this A. case in this case in this case it is okay that we, if we want to alter our path from A to D, D to C, C to B and B to A,
हम ऑल्टर कर सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, और जब तक आपका कन्वेंशनल पेपर हो रहा है, मतलब एज एट योर लेवल, एट एजुकेशन लेवल, इट डजंट रियली मैटर, क्योंकि आपको उनको सिर्फ ये देखना है कि आप मशीनिंग बराबर कर रहे हो कि नहीं कर रहे। बट व्हेन यू गो ऑन द और वर्क स्टार्ट वर्किंग ऑन अ शॉप फ्लोर, दिस layout or this process or this path matters. क्यों? बिकॉज देर आर चांसेस और दे मे बी चांसेस कि आप अगर ये पाथ फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पे आपको 15 मिनट लग रहा है, और अगर ये पाथ फॉलो कर रहे हो तो आपको 14 मिनट लग रहा है। राइट, डिपेंड्स। तो वो पहले आपको चेक करना पड़ता है। कभी कभी दोनों में सेम लगता है, कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों में अलग अलग पाथ के लिए अलग अलग टाइम लगता है। तो यू हैव टू सिलेक्ट द शॉर्टेस्ट टाइम इन विच यू कैन मेक द ऑब्जेक्ट और डिजाइन द ऑब्जेक्ट। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे शॉर्टेस्ट टाइम कहाँ था। अभी मैं आपको अगर बात करूँ आपके सिलेबस की और एट योर लेवल, एट एजुकेशन लेवल, इट डजंट रियली मैटर, यू कैन यूज एनी पाथ दैट यू वांट। तो इसमें आपके मार्क्स कट नहीं होंगे। तो मगर यहाँ पे नोटेशन देना या इंडिकेट करना कि आप कौन सा पाथ यूज कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ टूल जो है हमारे पास है T01, टूल नंबर 1 बोलते हैं इसको, इसको लेबल करना जरूरी है। अब इसके अंदर तो एक ही ऑपरेशन हो रहा है, वी आर यूजिंग ओनली वन ऑपरेशन और वी आर परफॉर्मिंग ओनली वन ऑपरेशन, तो उसको लेबल करेंगे T01। और T01 का मतलब है टूल नंबर 1। अब ये होता है टरेट के ऊपर फिक्स। टरेट ऐसा कुछ डिवाइस है सर्कुलर जिसके ऊपर आप टूल फिक्स करते हो। तो टरेट में देर इज टूल नंबर 1, टूल नंबर 2, टूल नंबर 3 पोजिशन होते हैं। राइट, अब ये पोजीशन पे आप कौन सा टूल T01 पे आप कौन सा टूल पिक कर रहे हो, T02 पे आप कौन सा टूल पिक कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ऑपरेटर के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसा प्रोग्राम लिख रहा है और कौन सा ऑपरेशन पहले कर रहा है, उसके हिसाब से ये टूलिंग फिक्स होती है। मतलब अगर समझो यहाँ पे ड्रिलिंग होती, ये 5 mm की ड्रिल है और ये 10 mm की ड्रिल है, तो पहले आप 5 mm करोगे या 10 mm करोगे, उस हिसाब से आप यहाँ पे टूल, कोई कोई बोलेगा सर मैं 10 mm पहले करूंगा, तो दूसरे पोजीशन पे उसने 10 mm की ड्रिल रखी और तीसरे पोजीशन पे उसने 5 mm की ड्रिल रखी। राइट, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से टूल पोजीशन पे आप कौन सा टूल इंडिकेट या इंसर्ट करते हो। तो दैट इज ऑल अप टू यू, उस हिसाब से आपको यहाँ पे टूल का इंडिकेशन देना पड़ेगा कि T01 इज बेसिकली डायमीटर 10 mm। राइट, और ऑपरेशन इज फेस मिलिंग। अब अगर मेरे पास एक और ऑपरेशन होता तो दिस वुड हैव बीन टूल नंबर 2, डायमीटर 5 mm, ऑपरेशन ड्रिलिंग। ठीक है, वैसे ही अगर एक और होता तो टूल T03 mm, ऑपरेशन ड्रिलिंग। ऑलराइट, मगर अभी मैं फिलहाल के लिए ये दो ऑपरेशन नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसको निगलेक्ट करता हूँ। अब it is also advisable that there should be a dummy tool inserted in the tool holder, that is the turret। तो हमेशा याद रखना कि अगर आपके पास जितने भी ऑपरेशन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास अगर मैं 3 ऑपरेशन लेता हूँ तो चौथा टूल जो है वो डमी टूल रहेगा। सिमिलरली अगर मेरे पास एक ही ऑपरेशन है तो जो दूसरा टूल रहेगा, मतलब एक्चुअल वर्किंग टूल +1 हमेशा रहेगा आपका। तो एक्चुअल वर्किंग टूल जो है हमारे पास, अभी हमारे पास है एक, तो हम ये जो है ये इरेज कर देते हैं। और यहाँ पे we will write tool T02 dummy tool। अब वो अब नहीं लेते, दिस इज ऑल्सो अ कन्वेंशन, लेते हैं नहीं लेते हैं इट्स ओके, बट मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसीलिए क्लासिक न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहा हूँ। ऑलराइट, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको ये यूज करना है। नाउ लेट मी इरेज दिस।
अब बारी आती है आपकी कोडिंग की। अब कोडिंग में सबसे पहले जो टूल होगा वो टूल एक पर्टिकुलर पोजीशन पे होगा, समझो एक रैंडम पोजीशन पे होता है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब भी टूल चेंज होगा, टूल चेंज होगा तो द टूल चेंज should always be at a certain location which is away from the workpiece। इसका मतलब ये है कि जब भी टूल चेंज होता है, मतलब टरेट घूमता है और टूल नेक्स्ट टूल एक्टिवेट होता है, तो देर आर चांसेस कि वो टूल लेंथ में बड़ा हो, हाइट में बड़ा हो, राइट, या डायमीटर में बड़ा हो, और उस अनइवन या अनवांटेड या अनडिजायर्ड लेंथ की वजह से टूल और वर्कपीस का अनवांटेड इंटरेक्शन हो जाए। मतलब टूल जब चेंज कर रहे हैं हम, मतलब टरेट तो घूम रहा है और वो वर्कपीस के इंटरेक्शन में आ गया, तो देयर मे बी डैमेज डन ऑन द वर्कपीस और देयर मे बी डैमेज डन ऑन द टूल। ठीक है, तो अनवांटेड इंटरेक्शन को अवॉइड करने के लिए प्रिकॉशनरी मेजर हम लेते हैं और हम क्या करते हैं, टूल को जब सर आपका आवाज कम हो गया। टूल जब चेंज करते हैं, टूल जब चेंज करते हैं तो हम उसको एक सर्टेन लेवल पे लेके जाते हैं विच इज अवे फ्रॉम द वर्कपीस, राइट। so that is called the start point, that is called the start point। उसको हम लेबल करते हैं कुछ थोड़ी दूरी पे। अब ये जो थोड़ी दूरी है that is called as the start point, which can be -100, -100, डिपेंड करता है। मैंने ले लिया -100, -100 टू बी सेफर, टू बी ऑन अ सेफर साइड। अब ये हो गया स्टार्ट पॉइंट, दिस इज कॉल्ड द स्टार्ट पॉइंट। अब जब भी टूल्स चालू होगा वर्किंग के लिए या टूल चेंज करने के लिए आएगा, तो टूल ऑटोमेटिकली स्टार्ट पॉइंट पे आएगा, टूल चेंज करेगा, फिर अपने लोकेशन पे जाएगा वापस से काम करने के लिए, राइट। तो ये आपको याद रखना है। इफ यू डोंट फील लाइक यू विल बी रिमेम्बरिंग दिस, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, सो दैट जब भी आप ये वर्कपीस पे काम करना चालू करें तो यू शुड बी एबल टू रिकॉल कि हाँ अभी टूल चेंज हो रहा है तो उसको स्टार्ट पॉइंट पे भेजना है, टूल को स्टार्ट पॉइंट पे भेजना है, टूल चेंज करना है, उसके बाद वर्कपीस के पास वापस आना है, जो भी लोकेशन पे वर्किंग चालू करना है वहां पे। तो एम आई क्लियर टू एवरीवन? एम आई क्लियर टू एवरीवन? यस, यस। ओके। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि जब आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, whenever you start performing an operation, for example एक सिंपल सा ऑपरेशन लूं, हाँ, मैल्कम को मैंने एक प्लेट में कुछ खाने को दिया, राइट, बासित को मैंने कुछ और दिया, अमन को कुछ और दिया, नयन को कुछ और दिया, राइट। फॉर एग्जाम्पल नयन को मैंने चावल की रोटी दी, अमन को मैंने तंदूरी रोटी दी, बासित को मैंने रुमाली रोटी दी। अब ये तीनों को मैंने रोटी दी है, राइट, और मैल्कम को मैंने पाव दिया है। अब मेरे को एक बात बताओ, यू आर होल्डिंग अ प्लेट इन योर हैंड, द फूड इज इन द प्लेट, यू आर अबाउट टू ईट, तो सबसे पहला आपका जो स्टेप होगा वो क्या होगा? उसको देखेंगे, ओके, उसके रोटी बाद? को उसके बाद अप्रोच करेंगे, क्या, कैसा अप्रोच करेंगे? हाथ आगे सर कुछ बढ़ाएंगे। ग्रेवी तो दो, खाली हाँ, रोटी खाएंगे। अभी अपन गरीब है, अभी सिर्फ रोटी मिलेगी, ऑलराइट। क्या करेगा बासित? यस, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ सर। हाँ, तो क्या करेगा बासित, कैसा खाएगा? सर सीधा तोड़ के खा लेंगे, हाँ, तो वो तोड़ने का अभी प्रोसीजर क्या गरीब है रहेगा? तो। तोड़ने का प्रोसीजर क्या रहेगा? फिंगर मूवमेंट डिटेलिंग बताओ ना। यस अच्छा माइकल? डिटेल में सर पहले रोटी उठाएंगे, ओके,
फिर उसको तोड़ेंगे ओके दोनों हाथ से। ओके, तब मतलब तुमने प्लेट नीचे रखी है, चलो ठीक है। हाँ, उसके बाद फिर उसको और तोड़ के खा लेंगे। खा लेंगे। बाकी सब लोग भी यही करेंगे ना। और खाने का मतलब वो माउथ मूवमेंट होगा। ऑलराइट, दिस इज अ वेरी लेमैन्स एग्जांपल जो कि मैं आपको कनेक्ट करने के लिए दिया। अब चलो मैं आपको बोलता हूँ कि आप लेथ मशीन पे हो, आप सब लोग लेथ मशीन पे हो, जो कि आपने काम तो किया है लेथ मशीन में सबने अपने प्रीवियस सेमेस्टर में। नाउ यू हैव बीन गिवन डिफरेंट जॉब्स। एक सेकंड ना, you people have been given different jobs। एक सर्कुलर शाफ्ट है, सर्कुलर सिलेंडर है, और उसके अंदर अलग अलग डिजाइन काम करनी है। तो आप सबके पास एक अलग अलग डिजाइन है, डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज डिफरेंट, मगर आप लोग को लेथ मशीन दी हुई है, वो तो सेम है या डिफरेंट हुई तो भी चलेगा, लेथ मशीन है मगर। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला क्या करेंगे? इसको बोलते हैं प्री रिक्विजिट। सबसे पहले क्या करेगा ऋषिकेश, क्या करेगा? सर पहले तो जॉब फंसाएंगे। ओके, कहाँ फंसाएंगे? भूल गया सर। भूल गया? चक चक। हाँ, चक में फंसाएंगे सर पहले। ओके, और चक में फंसाने के लिए क्या करेंगे हम? सर वो चक को की से ओपन करेंगे उसके जॉज को। वेरी गुड। हाँ, उसके बाद जॉब सेट उसके बाद करेंगे। सर जॉब को लगाएंगे चक में, ओके फिर की से फिट करेंगे। ओके फिर फिर देखेंगे आपने वो डायरेक्ट स्ट्रेट घूम रहा है क्या, सर्कुलर घूम रहा है क्या, कि थोड़ा डेविएशन आ रहा है, वो चेक ओके, करेंगे। एसेंट्रिसिटी चेक करेंगे। ओके फिर उसके बाद डिजाइन देखेंगे, सबसे पहले परफॉर्म के कौन सा करना है, कौन सी साइड से करना है। ओके फिर उसके बाद फिर उसके हाथ से इसको वो हेड रहता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, टूल हेड, हाँ, जिसके अंदर टूल, फिर उसके वो टूल लाएंगे और टूल टूल फिट होल्डर करेंगे बोलते हैं उसको। उसके। टूल होल्डर। हम्म, टूल होल्डर के हिसाब से कौन सा अपने को यूज करना है, उसके हिसाब से हम लोग वो लाएंगे टूल, और हाँ टूल होल्डर के अंदर फिट करेंगे हाँ की का यूज करके। फिर होल्ड किया, फिर उसको फिट करके परपेंडिकुलर पे लाएंगे ओके टूल होल्डर को, वो हो गया। फिर उसके बाद मशीन स्टार्ट करेंगे, और फिर जितना मतलब कैसा परफॉर्म करने का, स्लो परफॉर्म कर, थोड़ा मीडियम में करेंगे, स्लो नहीं करेंगे। हाँ फिर चालू करेंगे मशीन तो चक चालू हो जाएगा। हाँ फिर उसके हिसाब से फिर बाद में आगे परफॉर्म करेंगे, कैसा डायमेंशन दिया रहेगा उसके हिसाब से। ओके, चलो ठीक है, अमन हाँ। का जॉब हो गया। बासित तू कैसा करेगा? सब पहले प्लान करके फिर जॉब को फिट करेंगे। पहले करना क्या है, फेसिंग करना है कि क्या करना है, वो करके फिर जॉब वेरी फिट गुड। करेंगे। हाँ, उसके बाद फिर जॉब फिट करके फिर उसके लिए कौन सा टूल रिक्वायर्ड है उसको टूल पोस्ट में है ना फिट करेंगे टूल को। ओके वेरी गुड। फिर फर्दर ऑपरेशन जो है उसको परफॉर्म करेंगे। डिटेल बता, जैसे डिटेल। अगर फेसिंग है तो टूल को परपेंडिकुलर लगाएंगे हाँ 90 डिग्री हाँ। लेथ एक्सिस से, हम्म, उससे फेसिंग करेंगे। अच्छा, टूल टूल को तुमने अलाइन करा कि नहीं अभी तक वर्क पीस के साथ? हाँ सर, वो टेल स्टॉक से अलाइन करना पड़ेगा, करेगा ना, तो सेंटर लगा के वो भी तो टेल बताओ। स्टॉक में। हाँ, तो इनिशियल हाँ, टूल का पोजीशन क्या रहेगा? इनिशियल पोजीशन मतलब इनिशियल टूल का पोजीशन तो एक रैंडम पोजीशन था। फिर उसको, रैंडम पोजीशन ही रहेगा ना सर। हाँ, तो उसके बाद टूल को वर्क पीस के पास लेके आएंगे ना, हाँ। स्टार्ट हाँ स्टार्ट पोजीशन पे, अपने हाथ से हाँ मैन्युअली। हाँ ये सर। सब लोग करेंगे ना, हाँ हाँ। है ना? हाँ सर। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद सर टूल का और वर्क पीस का सेंटर दे चेक करेंगे, अगर सेंटर में नहीं है तो टूल के नीचे पैकिंग लगाएंगे। चलो ठीक है, ये सब हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? ऑन करेंगे। हाँ ऑन करेंगे ना, क्या ऑन करेंगे? मशीन ऑन चक करेंगे। को प्लेट ऑन। रोटेशन सर, चक हाँ, का चक स्पिंडल ऑन स्पिंडल करेंगे। बराबर। स्पिंडल ऑन करेंगे। हाँ ऑलराइट, चक का स्पिंडल ऑन करने के बाद क्या करेंगे? उसके धीरे बाद धीरे। टूल को जो ऑपरेशन करने का सर वही फेसिंग करने का तो फिर फेसिंग कूलेंट करेंगे। ऑन करेंगे कि नहीं करेंगे अभी?
सर लेथ मशीन में कूलेंट बहुत कम रेयर केस में होता है। अच्छा चलो ठीक है, कूलेंट ऑन करेंगे कि नहीं, मगर अगर कूलेंट की फैसिलिटी है तो? करेंगे हाँ तो सर, सर ऑन ड्रिलिंग करते हुए करेंगे। कूलेंट लगता है। हाँ करेंगे सर। अच्छा अच्छा, पहले कूलेंट ऑन करेंगे कि पहले स्पिंडल ऑन करेंगे? सर स्पिंडल ऑन करेंगे तो स्पिंडल। कूलेंट ऑन हो जाएगा। हाँ बेटा। अच्छा, अगर मैंने पहला कूलेंट ऑन किया फिर स्पिंडल ऑन किया, तो मैं गलत हूँ कि पहले कूलेंट ऑन करना है फिर स्पिंडल ऑन करना है? सर आप ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले कूलेंट ऑन कर दो बस, वो अगर कभी भी नहीं ऑन किया, करो। अगर पहले स्पिंडल ऑन किया और फिर कूलेंट ऑन किया फिर स्पिंडल चालू किया, तो भी मैं गलत हूँ कि सही हूँ? सर सही हो ना, ऑपरेशन चालू करने से पहले ही कर रहे हो ना कूलेंट ऑन। हाँ। अच्छा, और एक और बात कि अच्छा चलो, अगर मैं ड्रिल या मिलिंग मशीन की बात करता हूँ, तो मिलिंग में क्या होता है, वर्कपीस जो है बेड पे रखते हैं अपन। ये तो टर्निंग और फेसिंग हाँ की बात बताई ना। अब मिलिंग ऑपरेशन में हम बेड पे वर्कपीस रखते हैं। अब बेड पे वर्कपीस या जो टूल बेड मशीन बेड है, उसके ऊपर मैंने वर्कपीस रख दिया, क्लैम्प कर दिया। अब उसके बाद इसके अंदर क्या करने का, टूल भी सर क्लैम्प कर दिया। टेल स्टॉक पे लगाएंगे ड्रिलिंग मशीन को। चलो ठीक है, वो भी हो गया। उसके बाद फिर उसके बाद उसको लॉक करेंगे। ओके, आगे? लॉक करने के बाद उसको बेड पे जो वीक एक एक प्लेन रहता है और एक वी शेप रहता है बेल्ट। दो टाइप के बेल्ट रहते हैं, एक प्लेन रहता है एक वी शेप रहता है। हम्म तो फिर उसके ऊपर उसको स्लाइड करेंगे वो बेड के ऊपर, और हम्म धीरे धीरे उसके सेंटर लाइन से मैच करने को ट्राई करेंगे। ओके जो टूल रहेगा उसका और जो इसका हम लोग का जो टूल है वो, उसको दोनों को मैच करने की कोशिश करेंगे। अगर मैच हो जाएगा फिर धीरे धीरे अंदर मतलब टूल जो टेल रहता है ना उसके अंदर हम लोग को पीछे साइड में ना मतलब घुमाने के लिए, टर्निंग करने के लिए वो मिलता रहता है, मतलब टर्निंग करने के लिए रहता है ना सर हाथ में, हम्म। पीछे घुमाने के लिए। हाँ, तो फिर वो धीरे धीरे कर देंगे। फिर जितना हो सकेगा उतना मतलब प्रिकॉशन से धीरे धीरे अंदर मतलब करके फिर देखेंगे बरोबर हो रहा है क्या। फिर उसके अंदर कूलेंट, इसके अंदर कूलेंट डालेंगे सर अपन हम्म हाथ से। हम्म इसके अंदर कूलेंट इंपॉर्टेंट रहता है, नहीं तो जो उसके चिप्स रहते हैं ना वो जले हुए बाहर आते हैं, तो ओके अच्छा नहीं रहता है स्टूडेंट के लिए भी। अच्छा हाँ, बस फिर परफॉर्म करते रहेंगे, फिर जितना हो जाएगा फिर निकाल लेंगे वापस, हो गया। ओके। एनीवन एल्स? सर ओसामा, आपने यासीन? मिलिंग का पूछे थे। मिलिंग का तो सर मिलिंग में तो बेड के ऊपर रहता है ना जॉब फिक्स। वही तो बोला ना। तो अमन ने तो लेथ का बताया है। अभी मैंने अभी ड्रिलिंग का बताया ना। ड्रिलिंग का बताया उसने। बोल बोल, मिलिंग का बता। सर मिलिंग में जॉब जॉब है ना बेड पे फिक्स रहता है और बेड मूव होता है हाँ एक्स वाई और जेड एक्सिस में, ओके। और जॉब स्टेशनरी रोटेट होता है हाँ अपने जगह पे। हाँ, बोलते रहो, बात बोलते रहो। तो सर ऑपरेशन डिपेंड करता है कि कौन से ऑपरेशन के टाइम पे चलो, क्या यूज होगा। ये जो सामने वाला, जो सामने स्क्रीन पे दिख रहा है ना, दैट इज फेस मिलिंग। ये मैंने जो यस आपके सर। सामने 100/150 का रखा है, ये टेबल पे रखा हुआ है जॉब। उसकी हाँ सर। थिकनेस है 20 mm। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये वर्क पीस पे मैंने क्लैम्प, टेबल पे मैंने क्लैम्प कर दिया। ठीक है, वर्क पीस टेबल पे क्लैम्प है। हाँ सबसे सर। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सर उसका टूल टूल डायमेंशन को सर करेक्ट करेंगे। टूल हाँ टूल टूल फिक्स करेंगे सर, जो टूल अपने को रिक्वायर्ड है। हाँ। उसके बाद उसके बाद जॉब मैनुअली फिक्स हम, करेंगे। मैनुअली चलो मैं बताता हूँ। मैनुअली आप पोजीशन ए पे लेके आएंगे, दैट इज -5, अब -5 पे लेके आने के बाद उसको 0 0 Z0 पे रखेंगे, मतलब वर्कपीस से थोड़ा ऊपर। अब वर्कपीस पे ऊपर रखने के बाद Z0 और A-5, A-5, मतलब X-5, Y-5 पोजीशन ले लेंगे और Z0 रखेंगे। उसके बाद स्पिंडल ऑन करेंगे, फिर कूलेंट ऑन करेंगे, और इसके बाद फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। मतलब अगर मैं मैनुअल मिलिंग मशीन की बात करूं, तो हमको मैनुअली मिलिंग मशीन को नीचे, मतलब स्पिंडल को नीचे लेके आना है या वर्कपीस को ऊपर लेके जाना है, डिपेंड। और फिर उसके बाद मूवमेंट करना है, मतलब ये पूरा A to B, B to C, C to D एंड D to A, ये हम करना है। अब अगर यही चीज मैंने लेथ पे की होती, आपने मेरे को एक बात बताओ, अब मैं अगर CNC पे काम करता हूँ, तो ऐसे बहुत सारी चीजें, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हैं जो आपने CNC या मैनुअल लेथ पे किए। मैंने बोला था एक सर्कुलर सिलेंडर का जॉब आप सबको दिया गया है और उसके अंदर अलग अलग डिजाइन है।
तो सबसे पहले जो प्री रिक्विजिट होता है, वॉट एवर द प्री रिक्विजिट, मतलब स्पिंडल ऑन करना, कूलेंट ऑन करना, पोजीशन लेना। जैसे कि मैंने अभी आपको खाने का एग्जांपल दिया था कि आपको बराबर खाने को दिया हुआ है, तो आपको खाने को तो कुछ भी दिया है, मगर आप लोग सब लोग एक प्रोसेस कॉमन करोगे, उसमें से कुछ प्रोसेस कॉमन करोगे, वो है मुंह खोलना और खाना डालना और चबाना। राइट, अगर सॉलिड फूड है तो। अब नो मैटर व्हाट फूड हैज बीन गिवन टू यू, राइट, अगर कुछ लिक्विड नहीं है, मैं सॉलिड स्टेट की बात कर रहा हूँ, सॉलिड फूड अगर आपको दिया है और आपको अलग अलग खाना दिया है, ठीक है, तो मैंने अगर आपको बोला खाओ, तो आपका कुछ स्टेटमेंट होगा, कुछ मोशन होगा या कुछ प्रोसेस होगा जो सब में कॉमन होगा, सब बच्चों में। वो सबसे एक एक तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा कि मुंह खोलेंगे और खाना मुंह के अंदर डालेंगे और चबाएंगे। और वैसे ही जब हम मशीनिंग करते हैं तो स्टार्टिंग के कुछ जो प्रोसेस होते हैं, वो सिर्फ जितनी भी ऑपरेशन करो आप, दुनिया के कोई भी ऑपरेशन करो सीएनसी पे, वो एक स्टेप जो है, एक स्टेप या दो स्टेप या 5 स्टेप या 10 स्टेप, वो स्टार्टिंग के कॉमन रहते हैं। ऑलराइट, दोज आर कॉल्ड एज प्री रिक्विजिट, मतलब मशीन को तैयार करना। आप मशीन को तैयार करते हो एक पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए। तो अब मेरा कहने का, आपको ये सब बोलने का ये मकसद है कि जब भी आप लोग कोई सीएनसी प्रोग्राम लिखेंगे, तो सीएनसी प्रोग्राम में ऐसे स्टेप्स आते हैं जहां पे आपको ये पर्टिकुलर स्टेप जो है वो कॉमन होते हैं इन एवरी एंड एवरी मशीनिंग प्रोसेस, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। अब वो प्रोसेस क्या होंगे, कोई एग्जाम्पल, एनी एग्जाम्पल, कौन कौन से प्रोसेस हो सकते हैं? क्या सर? वो स्टार्टिंग का को जो जो स्टेप मैंने बताया, वो स्टेप कौन कौन से स्टेप मूवमेंट कॉमन इन हो सकते एक्स एंड जेड डायरेक्शन, ये कॉमन ही रहेगा। हैं? अगर मैं सीएनसी की बात कर रहा हूँ तो स्टेप्स मतलब सर जो मूवमेंट, सर मूवमेंट रहेंगे ना पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसे एक्स डायरेक्शन में हो गया तो वो भी कॉमन ही रहेगा, सिर्फ कितना आगे जाना है वो डिपेंड करेगा। चलो मैं आपको बताता हूँ। एक्स सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लिखा, आई हैव टू ड्रॉ टेबल बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। अब ये टेबल में आपको ठीक है, ये टेबल में आपको यहाँ पे लिखना है कोड्स और यहाँ लिखना डिस्क्रिप्शन। सबसे पहला जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, दैट इज द इंडिकेटर दैट द प्रोग्राम इज स्टार्टिंग इज द परसेंट राइट। ये एग्जीक्यूट नहीं होता है, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। क्यों? क्योंकि अगर मल्टीपल प्रोग्रामिंग साथ में किए, फॉर एग्जांपल अगर मैं AEROPLANE लिखता हूँ या मिलिंग ऑपरेशन एक प्लेट पे ये लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, मल्टीपल प्रोग्राम्स कॉल करूँगा। तो वो कॉल करने के चक्कर में मेरे को मालूम होना चाहिए कि हाँ यहाँ से एक नया प्रोग्राम चालू हुआ, यहाँ से एक नया प्रोग्राम चालू हुआ, ये मेरे को समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैं ये लिख के रखता हूँ। दिस इज द इंडिकेटर, जस्ट द इंडिकेटर। कंप्यूटर इसको एग्जीक्यूट नहीं करता है। दिस लैंग्वेज इज नॉट अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो दिस इज द यस फर्स्ट। सर। उसके बाद हम लिखते हैं प्रोग्राम नंबर। अब प्रोग्राम नंबर फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 41, रैंडम प्रोग्राम नंबर, वो आपके ऊपर है, आप कौन सा प्रोग्राम लिखते हो। 01 लिखो तो भी चलेगा, कोई आपका मार्क्स नहीं काटेगा। 100 लिखो तो भी चलेगा, कोई आपका मार्क्स नहीं काटेगा। 1000 लिखो तो भी चलेगा। उसके बाद आता है लाइन नंबर N0। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है 001 लिखते हो कि 10 लिखते हो, दिस इज ऑल ऑन यू। राइट, उसके बाद कंप्यूटर को मालूम है कि जो इनपुट आने वाला है वो न्यूमेरिकल डेटा है, बट न्यूमेरिकल डेटा कौन सा रहेगा, में रहेगा, इंच में रहेगा, कौन सा सिस्टम रहेगा, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम रहेगा, इंक्रीमेंटल रहेगा, ये सारा मेरे को कंप्यूटर को बताना है कि मैं जो आगे देने वाला हूँ वो क्या है। तो सबसे पहले तो ये पर्टिकुलर रैंडम पोजीशन पे है। राइट, अब मेरे को चाहिए कि कंप्यूटर जब एग्जीक्यूट करे तो अपने रैंडम पोजीशन से फटाक से, मतलब जल्दी से अपने ओरिजिनल पोजीशन दैट इज -5, पे आए। तो आई हैव टू टेल द कंप्यूटर बाय गिविंग अ कोड रैपिड मोशन दैट इज G00।
उसके बाद मैं उसको बोलता हूँ कि अब आगे जो मैं तेरे को कोड दूंगा दैट विल बी इन मेट्रिक सिस्टम, एंड आई विल टेल कि जो मैं काम कर रहा हूँ मेट्रिक सिस्टम का, जो कोऑर्डिनेट दे रहा हूँ 1 2, दैट इज इन एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये मेरे को कंप्यूटर को पहले ही बता के देना है कि मैं तेरे को नंबर दिया 70, तो 70 फ्रॉम वेयर, तो 70 फ्रॉम 00 के 70 फ्रॉम 75, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो मैंने उसको बोल दिया कि मैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रहा हूँ, और तू जो मोशन करने वाला है वो है मेट्रिक सिस्टम में, और तेरे को जल्दी जल्दी आगे जाना है, दैट इज G00, रैपिड मोशन फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन। अब मैंने ये कोड तो दे दिया, अब मैं अपने आप को थोड़ा टाइम देता हूँ और आई चेक वेदर माई अरेंजमेंट, जब ये मशीन या जो टूल आगे गया लोकेशन पे या जाएगा तो वो अच्छे करेक्ट पोजीशन पे है कि नहीं। तो आई टेक M00 मैनुअल मोशन या मैनुअल ऑपरेशन। अब इसके बाद मैं कंप्यूटर को बोलता हूँ कि भाई ये तो तू तैयार हो रहा है, मगर तैयारी के पहले तलवार तो ले ले काटने के लिए, राइट। तो यहाँ पे उसका जो हथियार है, जो वेपन है, दैट इज द टूल। अब ये टूल सिलेक्शन के लिए इट हैज टू बी गिवन अ कोड M06 T01, ये हो गया टूल सिलेक्शन। अब मैं बोलता हूँ भाई तूने टूल तो ले लिया, टूल तो ले लिया ना, गो टू द लोकेशन रैपिडली। तो वो या तो यहां से रैपिड मोशन लेगा, या अगर आप यहाँ पे G00 लिखते हो इसके बाद, बोथ आर करेक्ट। कोई कोई क्या लिखता है N040 G00, और यहाँ पे G00 नहीं लिखता है, दैट्स फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। अब N050, अब N050 पे मैं कंप्यूटर को बोलता हूं कि अब मेरे को क्या बोलना चाहिए कंप्यूटर को। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाट शुड आई टेल द कंप्यूटर फॉर द दिस थिंग मशीन। तो स्टार्ट कटिंग। स्टार्ट कटिंग। पोजीशन पे डायमेंशन गए क्या पुट तुम? करना पोजीशन पड़ेगा पे ना गए सर। क्या बासित? पोजीशन पे गए क्या? हाँ बासित, पोजीशन पे पहुंचे कि नहीं अभी तक? तो मेरा टूल A -5 पे आ गया था ना। कहाँ है अभी? दिया है क्या तुमने उसको? तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं G44 से। G44 क्या है बासित? टूल लेंथ ऑफसेट। हाँ, इसका मतलब ये होता है कि जब ये वर्कपीस और टूल का इंटरेक्शन होगा ना, तो टूल का भी वेयरिंग होगा और वर्कपीस का भी वेयरिंग होगा। वेयर एंड टेयर होता है ना टूल का भी और वर्कपीस का भी। तो यहाँ पे देयर इज अ सर्वो मैकेनिज्म इन द स्पिंडल विच पुशेस द टूल टुवर्ड्स द वर्कपीस, ताकि कांटेक्ट बना रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 mm का या 0.1 mm का भी अगर टूल और वर्कपीस के बीच में गैप आ गया तो कटिंग होगी क्या? नहीं नहीं होगी ना। नहीं होगी। तो ये जो गैप हमको प्रोड्यूस नहीं करना है। क्यों? वैसे तो होगा, क्यों? बिकॉज टूल जब घूमता है और वर्कपीस को कट करता है तो टूल भी इरोड होता है। तो जब टूल का इरोजन होता है तो जाहिर सी बात है कुछ तो गैप आएगा। तो वो गैप ना आए इसीलिए देयर इज अ स्प्रिंग सिस्टम which is actuated, all right, and that is actuated by tool keeping the tool length offset on। उसके बाद हम उसको पोजीशन देते हैं सबसे पहले Z0H01 की, कि जा भाई तू ऊपर हो जा थोड़ा, Z0H01 पे चले जा। अब हम बोलते हैं कि Z0H0 पे 1 पे तो है, चलो ये रैंडम पोजीशन पे हो रहा है, यहाँ पे अभी तक पहुंचा नहीं है क्योंकि मैंने अभी X-5 Y-5 दिया ही नहीं है। ये एक रैंडम पोजीशन पे अपनी पोजीशनिंग हाइट एडजस्ट कर रहा है सबसे पहले, तो हाइट उसकी एडजस्ट हो गई। उसके बाद क्या होना चाहिए? में जाऊंगा। स्पिंडल ऑन करूं?
और कूलेंट ऑन करूं? हाँ सर। हो गया M03 M08 स्पिंडल ऑन एंड कूलेंट ऑन। उसके बाद मेरे को क्या करना चाहिए? सर रैपिड मोशन ना, रैपिड मोशन। -5 पे जाने के लिए सर। ये तो है ना रैपिड मोशन G00। N70 आपके हिसाब से मेरे को क्या करना चाहिए? अब पोजीशन पे जाना चाहिए ना सर। X -5 Y -5, ठीक है। उसके बाद क्या? जेड एक्सिस में नीचे आएगा। सर नीचे आएगा, मतलब इट विल बी N सर टूल रैंडम पोजीशन पे था ना। एक सेकंड रुक। हाँ, टूल रैंडम पोजीशन पे था। तो सर उसको -5 कैसे समझेगा? रेफरेंस तो कुछ देना पड़ेगा ना। रेफरेंस है ना बेटा, अपन ने वो मैनुअल ऑपरेशन में करते हैं ना अपन, ये जो मैनुअल ऑपरेशन है ना उसको सेट करते हैं हम मैनुअली हाँ। लेके, उसको मैनुअली लेके इसका 00 सेट करना पड़ता है, ठीक है। ये टूल मशीन चालू करने से पहले का है, इसमें इसको कमांड में नहीं लिखते हम, बिकॉज ये हमारा वर्कपीस है ना, तो वर्कपीस को पहले क्लैम्प करते हैं, क्लैम्प के बाद हम क्या करते हैं टूल को वर्कपीस के ऊपर लेके जाते हैं, फिर इसको 0 सेट करते हैं हम मैनुअली। इसको 0 सेट करने के बाद अच्छा, फिर अवे फ्रॉम द वर्कपीस लेकर जाते हैं। फिर अवे फ्रॉम द वर्कपीस, फिर एग्जीक्यूशन होता है फिर कोड का, ठीक है। ओके ओके ओके। क्योंकि मशीन को थोड़ी ना मालूम है शेप क्या है, वर्कपीस का शेप क्या है। नाउ दिस इज लाइन नंबर N80। अब क्या करेंगे हम, Z को नीचे लेके जाएंगे -22, ये हो गया, हुआ कि नहीं? अब ये Z -20 पे है, X ये यहाँ पे है, ये पोजीशन पे है टूल, और ये Z 0 पे है, मतलब ये -22 चला गया, मतलब वर्कपीस के अंदर घुस चुका है, मतलब ये आपका वर्कपीस है और ये मेरा टूल है, ठीक है, ये पोजीशन पे। अब क्या करेंगे, टूल आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इधर पे बढ़ेगा ना? वो कैसा बढ़ रहा है आगे? सर्कुलर पोजीशन में बढ़ रहा है, लीनियर में बढ़ रहा है? सर्कुलर पोजीशन में बढ़ रहा है। लीनियर में बढ़ेगा ना। लीनियर में सर, लीनियर मोशन। Linearly. यहाँ पे हम G01 X 105, ठीक है। Y का पोजीशन क्या रहेगा? -5, तो अगर मैंने यहाँ पे Y -5 लिखा तो ठीक, नहीं लिखा तो भी वो प्रीवियस पोजीशन उसका ले लेगा, डिफॉल्ट है। तो मैंने जो चेंज हो रहा है कोऑर्डिनेट सिर्फ वो लिखा X 105, समझे? हाँ तो यहाँ पे X चेंज हो रहा है, Y वैसे का वैसे ही है। सिमिलरली नेक्स्ट पोजीशन क्या रहेगा? Y चेंज हो रहा है, X वैसे का वैसे ही है। हाँ सर। सिमिलरली D पोजीशन में X चेंज हो रहा है, Y वैसे का वैसे ही है ना? तो अब G01 बोल दिया, मतलब कंप्यूटर को समझ गया या कोडिंग को समझ गया या मशीन को समझ गया कि आई हैव टू मूव इन अ लीनियर मोशन। जो भी कोऑर्डिनेट देंगे मेरे को, जो भी कोऑर्डिनेट देंगे मेरे को सीधा ही जाने का है, ऐसा घूम के नहीं जाने का है। तो सीधा जाने के लिए G01 एक बार लिख दिया
तो जब तक मैं G02 नहीं लिखूंगा वो G01 ही फॉलो करेगा, ठीक है। तो आई डोंट हैव टू राइट इट अगेन एंड अगेन। दिस इज कॉल्ड एज मोडाल कोड। G codes are either modal or non-modal. So this is an example of modal code. जहाँ पे G01 लिखा तो जब तक मैं कोड चेंज नहीं करूंगा वो सीधा ही जाएगा, इधर भी जाएगा सीधा जाएगा, कोई भी कोऑर्डिनेट पे जाएगा सीधा जाएगा, घूम के नहीं जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज मोडाल कोड। समझा सबको? हाँ सर। तो अब मैंने ये पोजीशन लिया, G01 डाला, मेरा इनिशियल पोजीशन था x -5 y -5, मैं उसको अंदर लेके गया वर्कपीस में। फिर अब मैंने G01 लिया, x 105 किया। नाउ नेक्स्ट पोजीशन इज n100। नेक्स्ट पोजीशन क्या रहेगा? y 155, करेक्ट? यस सर। देन 110 लाइन सर नंबर। अगर G01 वापस से लिखे तो लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपका काम बढ़ जाएगा। उस आपके लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ आपका काम बढ़ेगा, ठीक है। यस सर। सर एक बार मोडाल और नॉन मोडाल बता दो ना, आगे बता ऐसे दो, ऊपर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन इज x -5। टू मेक इट मोर सिंपल फॉर यू, चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ, राइट। आई हैव दिस, this is x, this is y, and this is position, this is location, a b c and d। a का क्या था? -5 -5, b का 105 -5, c का क्या है? 105 155, d का 150 -5 -5 155। तो अब आपको आसानी होगी, ठीक है। अभी मैं y 155 पे हूँ, ये वाले पे मैं c पोजीशन पे हूँ। अब मैं d पोजीशन पे आया, d पोजीशन पे क्या है? x -5 बराबर। अब मुझे बैक टू a जाना है ना, a टू b, b टू c, c टू d एंड बैक टू a। तो अभी मैं पोजीशन d पे हूँ, बराबर। ये देखो, ये x -5, y विल बी 155। मैं दोनों कोऑर्डिनेट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जरूरी नहीं है, स्मार्ट काम करने का। सबसे पहला मेरा क्या कोऑर्डिनेट था? x -5 y -5, ए पोजीशन। फिर उसके बाद मैं बी पोजीशन पे गया। बी पोजीशन का कोऑर्डिनेट क्या है? x 105 y -5। -5 तो सेम है y, तो मैंने x लिखा खाली 105। फिर सी पोजीशन पे क्या है? तो सर x सेम है तो y लिखे 155। बराबर। अब डी पोजीशन पे क्या है? y सेम है तो x लिखे x -5। लिखे। सबको समझ में आया? अब मुझे बैक टू ए जाना है, ए पोजीशन, लूप कंप्लीट करना है ना। तो लाइन नंबर लिखता हूँ और उसके बाद यहाँ क्या लिखूंगा? -5 y -5। y -5। अब ये कंप्यूटर ने ऑपरेशन कंप्लीट कर दिया, ऑलराइट। उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए? इसके बाद टूल ऊपर उठाना चाहिए। टूल ऊपर लेके आएंगे, तो 130 Z0 के Z22 22 क्या करेंगे? सर Z0। Z22 लेंगे ना सर, टूल ऊपर आएगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमारा टूल का पोजीशन है Z0, ये गया -1 -2 -3 -4 -5 अप टू
this is minus 22. Similarly, this is 1 2 3 4 5 6 up to plus 22. तो आपको टूल को Z0 पे लेके जाना है कि Z22 पे लेके जाना है? 22 22 पे लेके जाना है, Z0 0 पे लेके जाएंगे ना अपन। सर लेकिन -22 डेप्थ में डाल देते तो फिर 22 पॉजिटिव आएगा तो 0 पे ही आएगा ना। नहीं आएगा ना बेटा, कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहा है तू, इंक्रीमेंटल के एब्सोल्यूट? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में जो जो लोकेशन है वही लोकेशन पे जाना है ना हमको, कि यहाँ से 0 काउंट करेगा। अगर इंक्रीमेंटल होता तो यहाँ से 0 काउंट करके ऊपर जाता तो होता प्लस 22, मगर हम तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे हैं। ओके सर। समझे? हाँ तो नाउ द लोकेशन विल बी Z0 एंड नॉट, आपने अभी मेरे को स्टार्टिंग में आंसर बोला Z22 ना, स्टार्टिंग वाले में जब मैंने एक्सप्लेन किया था वो ऊपर वाले में, तब मैं समझ गया हाँ था कि सर। ये यहाँ पे कंफ्यूजन है आप लोग को, ये इसीलिए मैंने जानबूझ के पूछा था, यहाँ पे सॉल्व करने के लिए मैंने वो डाउट रखा था। नाउ आई होप दिस डाउट इज क्लियर बिकॉज वी आर यूजिंग एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम एब्सोल्यूट है, मतलब जो पोजीशन है 0 0 हमारा डेफिनेट है, वो 0 0 अपनी जगह से हिला नहीं है। इंक्रीमेंटल में क्या होता, हमारा करंट पोजीशन 0 हो जाता है, तो हम प्लस 22 लिखे तो चलता, मगर हम एब्सोल्यूट यूज कर रहे हैं। एब्सोल्यूट में Z0 एक ही लोकेशन पे रहेगा और वही रेफरेंस हम लेंगे बार बार, वही 0 से। तो नाउ वी शुड गो टू Z0। दिस इज ओवर। उसके बाद क्या करेंगे बेटा? कूलेंट ऑफ मशीन ऑफ। उसके बाद क्या करेंगे? सर टूल को अवे फ्रॉम द वर्कपीस लाके कूलेंट वूलेंट ऑफ करके मशीन ऑफ कर देंगे। तो स्पिंडल ऑफ, कूलेंट ऑफ करो। स्पिंडल ऑफ का क्या है कोड? M09 किसका है? कूलेंट ऑफ। कूलेंट ऑफ। और स्पिंडल ऑफ? M05 M02 सर, सब कुछ ऑफ हो जाएगा। M05, ठीक है। हाँ उसके सर। बाद अभी नहीं करना है हमको। उसके बाद N150, लाइन नंबर 150, अब ये ऑफ हो गया। अब हमको स्टार्ट पोजीशन पे जाना है, तो स्टार्ट पोजीशन हमारा क्या होगा? X -100 एंड Y -100, ये आप डिसाइड करेंगे स्टार्ट पोजीशन क्या है। मैंने -100, -100 लिया है रैंडम, ये वाला, ये स्टार्ट पोजीशन, ये वाला, ठीक है। उसके बाद मैं स्टार्ट पोजीशन पे आया हूँ, क्यों? बिकॉज मेरे को टूल चेंज करना है, और टूल तभी चेंज होगा जब मेरा स्पिंडल ऑफ होगा और कूलेंट ऑफ होगा। तो कूलेंट ऑफ किया, स्पिंडल ऑफ किया, उसको स्टार्ट पोजीशन पे लेके आया। उसके बाद आई टेक N160 M06 T02 change to dummy tool. This is change to dummy tool. अब डमी टूल हो गया, उसके बाद क्या करना चाहिए हमको? इसके बाद क्या करना चाहिए बासित? इट इज N170 M00, और कहीं कहीं दे राइट N180 M30। M30 इज व्हाट? सब कुछ ऑफ हो जाएगा सर, प्रोग्राम ऑफ। टेप रिवाइंड भी है ना? हाँ टेप
प्लस टेप रिवाइंड समथिंग कुछ है। हाँ, तो वो टेप रिवाइंड हमको करना है नहीं करना है, दैट डिपेंड। तो दिस इज ऑप्शनल, ऑप्शनल ऑन द वर्क पीस। आपको वर्क पीस के ऊपर आके काम करना है कि बेसिकली यू स्टॉप हियर, यू स्टॉप हियर, ठीक है। एनी डाउट इन दिस? सर एनी वो डाउट? ऊपर G00 2 बार लिखा है ना, हाँ, 2 बार लिखने का है क्या? कहाँ पे? मैंने कट किया ना, या तो यहाँ पे लिखो हाँ या तो तो एक यहाँ ही पे जगह लिखो। पे लिखने का है ना ये। हाँ वही बोला, या तो यहाँ पे लिखो या तो यहाँ पे लिखो। अगर यहाँ पे लिखे तो यहाँ पे मत लिखो, ठीक है। हाँ अब सर। इसके सामने आपको जो डिस्क्रिप्शन लिखना है ना बेटा, ये डिस्क्रिप्शन आपको ऐसे लिखना है स्टोरी के फॉर्म में। सर बोलिए। ऑप्शनल प्रोग्रामेबल स्टॉप क्या होता है? ऑप्शनल प्रोग्रामेबल स्टॉप ऐसा होता है कि अगर मुझे बीच में कोई और ऑपरेशन ऐड करना है, राइट, तो वो हम यस सर। बीच में ऐड कर सकते हैं। तो M01 जब सर करेंगे तो स्टॉप हो जाएगा प्रोग्राम, फिर अपन ऐड करके फिर उसको कंटिन्यू करने का। हाँ, या ऑप्शनल प्रोग्रामिंग स्टॉप करके हम अगर जॉब को एक बार क्रॉस चेक करना चाहते हैं, ऐसे कुछ टीडीएस ओके। जॉब होते हैं कि हमको पहले एक बार देखना पड़ता है कि ये एक रन में कितना हुआ, फिर हमको आगे जाना है कि नहीं जाना है। वो सारा ऑपरेशन ऑपरेटर टू ऑपरेटर डिपेंड करता है। कोड्स तो सारे बना ओके के सर। दे दिए। फॉर एग्जांपल ऐसा है कि आप बैंक के अंदर अकाउंट खोलने जा रहे हो और आपको एक बहुत सारा फॉर्म भरने को देते हैं, बहुत बड़ा फॉर्म रहता है, मगर उसके अंदर आप सब कुछ तो नहीं भरते हो ना, उसके अंदर जो आपके लिए रिक्वायर्ड है वही भरते हो ना। सिमिलरली हाँ यहाँ पे सर। आपके पास A to Z अल्फाबेट या जी कोड एम कोड पूरा का पूरा लाइब्रेरी है, मगर जो आपको यूज है वो आप यूज करो, बाकी छोड़ दो, ऐसा है। तो राइट डाउन द कोड्स, डायग्राम आपने ऑलरेडी बना लिया है, कोड्स लिख लो। डायग्राम बना लिया ना सबने? नहीं सर। बनाओ। तो थोड़ा ऊपर। सर इसके पहले वाला लेक्चर था, मैं उसमें था नहीं ना, तो फिर वो सेंड करो ना मेरे को रिकॉर्डिंग वाला लेक्चर। हाँ ठीक। सर इसमें डमी टूल का क्या काम था, वो नहीं समझा। डमी टूल का ऐसा है कि एक कन्वेंशन है जो कि अब यूज नहीं करते हैं, कि जो हमारा जो लास्ट टूल होता है ना, जितने भी टूल्स हैं वो टूल्स को हटा के हम अभी फॉर एग्जांपल इसके अंदर तो एक ही टूल यूज हुआ है, तो वो टूल को रिप्लेस करके हम वहाँ पे डमी टूल यूज करते थे। दिस इंक्रीजेस द लाइफ ऑफ द टरेट। अब फिलहाल के लिए द टेक्नोलॉजी हैज चेंज, तो थिंग्स आर डिफरेंट राइट नाउ, बट अर्लियर दे यूज्ड टू डू दिस कि हम चक को खाली नहीं छोड़ते थे, हम चक के सर अंदर इसका क्वेश्चन क्या रहेगा? राइट अ मैनुअल, लिखो लिखो क्वेश्चन लिखो, राइट अ मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग write a manual part programming for the object as shown in figure. The material of the object of the workpiece, the material of the workpiece is ms of 20 mm thickness, of 20 mm thickness. List the operation that are to be performed. List the operation that are to be performed in order to get the work done. Using a लिस्ट the operation. list the operation, also list the operation to be performed in order to get the job done
with the help of tool of 10 mm diameter. अच्छा, अगर ये डायमीटर नहीं दिया है आपको तो इट इज यू हु विल अज्यूम इट. 10 mm ले लो. 10 mm नॉर्मली लिया तो भी कैलकुलेशन में आसानी पड़ती है. मतलब ये देखो -5 हो जाता है ना वैसे, ए की पोजीशन, बी की पोजीशन, राइट. दिस इज द क्वेश्चन. तो आपको ऑपरेशन आइडेंटिफाई करना है, उसके मार्क्स हैं कि आप कौन सा ऑपरेशन करेंगे ये वर्क पीस के ऊपर. सर वो क्वेश्चन में राइट अ मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग, उसके बाद क्या था? राइट अ मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग. बासित बता क्वेश्चन क्या था. For the object as shown in figure, the material of the workpiece is MS of 20 mm. Aman. हाँ हाँ मिल गया, वो मेरा से वो छूट गया था ऑब्जेक्ट वाला, बस हो गया. Okay. डायग्राम बना लिए मनीष, ऋषिकेश, रोहित, उसामा, यज्ञेश. हाँ हाँ सर सर. हो गया. हाँ सर. ओके, नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ. अच्छा, ये जो टेबल बनाया ना मैंने, किसके लिए? कोऑर्डिनेट एक्सेस के लिए. ये टेबल भी बना लो. दैट विल बी इजी फॉर यू टू, दैट विल मेक योर वर्क वेरी इजी, क्योंकि आप डायरेक्टली कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई कर पाओगे. राइट, राइट डाउन पोजीशन, क्योंकि मल्टीपल पोजीशन हो सकता है. अभी तो यहाँ पे 4 पोजीशन था, ए टू जेड. ऐसे मल्टीपल पोजीशन हो सकता है. सॉरी, ए टू डी है. ऐसे मल्टीपल पोजीशन हो सकता है, तो इट विल क्रिएट कंफ्यूजन. so it is better to identify the coordinates of each position. तो ये टेबल बनाओ और कोऑर्डिनेट्स लिख लो. देखिए, अगर कन्वेंशनल मेथड आया, तो आपको ये पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा. और अगर नॉन कन्वेंशनल में अगर ये कोडिंग से रिलेटेड कुछ पूछा तो आपको इसके कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, वो आना जरूरी है. सर वो जगह छोड़ने का है क्या बाजू में? हाँ, डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा ना आपको. डिस्क्रिप्शन के इधर. डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा. इट कैरीज मार्क्स. ओके. अब डिस्क्रिप्शन में आपको वही लिखना है. G00 मतलब क्या होता है, G71 मतलब क्या होता है, G91 मतलब क्या होता है, वही डिस्क्रिप्शन है. मतलब तो बेसिकली वो आप, लिखना पड़ता है, नहीं हाँ लिखना वो पड़ता? लिखना पड़ता है. इट कैरीज मार्क्स, उसके मार्क्स है. तो ऐसा आपको टेबल बनाना पड़ेगा. एक जगह कोड लिखना पड़ेगा, दूसरे जगह डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा. तो यहाँ पे लिखते जाओ G00 रैपिड मोशन, G71 एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, incremental coordinate system and so on. Metric system and absolute coordinate system, G90 and G71. ये आपका एक ब्लूप्रिंट न्यूमेरिकल समझो. मतलब इसके अंदर इतना सारा इंफॉर्मेशन आप लिख लो पेन का कलर चेंज करके, ताकि जब भी आपको कुछ रेफरेंस चाहिए पड़े ना, तो आप ये न्यूमेरिकल उठाओगे तो आपको समझ जाएगा कि हाँ बेसिकली कोडिंग कैसे करते हैं. तो ऐसा न्यूमेरिकल आते हैं? आता है ना. ये वाला न्यूमेरिकल आ गया, मतलब ये कोडिंग आ गई, तो आपको ऑलमोस्ट 90% 80% आपको कोडिंग आ गई बेटा.
सर लेक्चर खत्म हुआ क्या? हाँ, ये न्यूमेरिकल के बाद आप लोग जा सकते हैं। सर बोलिए। मोडल और नॉन मोडल बताओ ना एक बार। मोडल वाला सर खत्म हो जाता है ना, एक बार यूज हुआ फिर खत्म। एक सेकेंड। आप लोग को अटेंडेंस भेजना था बलराम सर को, वो कर रहा हूँ। हाँ, मोडाल में क्या होता है? मोडाल में हाँ, मोडाल में जो कोड्स होता है, मोडाल कोड कौन से होते हैं? मोडाल कोड्स आर जनरली एम कोड्स। लेट मी रिपीट इट अगेन फॉर यू। एम कोड्स आर ऑलवेज मोडाल कोड। और मोडाल कोड का मतलब है कि अगर सेमीकोलन आता है तो वो कोड अपने आप को डीएक्टिवेट करता है कि नहीं करता है। एम मतलब उसको मारना पड़ता है। दिस इज द मेथड दैट आई हैव टोल्ड यू टू रिमेंबर। उसको मारना पड़ता है। मारना पड़ता है मतलब उसके लिए एक और काउंटर कोड लिखना पड़ता है इन ऑर्डर टू डीएक्टिवेट इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने G01 लिखा, या सॉरी एम, स्पिंडल ऑन का क्या है? स्पिंडल ऑन का क्या था? M03 बराबर। हाँ तो M03 के बाद हमने अगर M0 क्या लिखा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाले पे, M05 व्हाट इज M05? स्पिंडल स्टॉप करने के लिए। अगर M03 लिखा और M03 के बाद अगर मैंने M05 नहीं लिखा तो आप घर पहुंच जाओगे, खाना पीना खा के सो जाओगे तो भी स्पिंडल ऑन रहेगा। अगर आपने M05 नहीं लिखा तो अगले दिन आओगे आपको स्पिंडल ऑन ही मिलेगा। तो देयर हैज टू बी अ काउंटर कोड in order to deactivate this code, that is called as modal code. वैसे ही G codes are modal and non modal। मतलब इसके अंदर ऐसे कोड्स हैं, MODAL, इसके अंदर ऐसे कोड्स हैं जो इनको मारना पड़ता है, और ऐसे कोड्स हैं जिनको नहीं मारना पड़ता है। दे हैव अ सुसाइडल टेंडेंसी। दिस इज जस्ट टू रिमेंबर। ये जो मैंने आपको स्टेटमेंट बोला, दीज आर जस्ट टू रिमेंबर और मेक थिंग्स इजी फॉर यू। नॉन मोडाल मतलब इनको नहीं मारना पड़ता है, NM नहीं मारना पड़ता है। क्यों? बिकॉज जैसे ही ये सेमीकोलन या एंड ऑफ ब्लॉक EOB इनकाउंटर करते हैं, ये अपने आप को डीएक्टिवेट कर देते हैं। देर आर सर्टेन कोड्स इन G कोड विच आर नॉन मोडाल ऑल्सो। मतलब G कोड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोडाल एंड और नॉन मोडाल। ठीक है, कुछ कुछ कोड मोडाल है, कुछ कुछ कोड नॉन मोडाल है, कॉम्बिनेशन है उसके अंदर। तो जितने भी नॉन मोडाल कोड्स हैं वो अपने आप को डीएक्टिवेट कर लेंगे एज सून एज दे एनकाउंटर द सेमीकोलन और एंड ऑफ ब्लॉक। बासित, डिड आई मेक all my statement clear to you? यस सर। ओके, चलो ठीक है। आपने ये सारा चीज़, ये डॉक्यूमेंट कॉपी कर लिया है। सुनिए, ये डॉक्यूमेंट कॉपी कर लिया। नाउ दी होमवर्क दैट आई वांट टू गिव टू यू इज, अब यहाँ पे आई वॉन्ट यू टू मेक अ ड्रिल ऑफ 5 mm and make a drill of 10 mm at a distance of 10 and 10 from both the sides और at the center। चलो सेंटर पकड़ लो। 50-50 50-50 और इधर पे भी 50, या इधर पे 25 कर लो। इसको 50 कर देते हैं, इसको 25 कर देते हैं। ठीक है, करेक्ट। सर डायमीटर कितना है उसका? इसका 5 है और इसका 10। तो दिस इज हाउ मच? दिस इज 25 and this is 50। ठीक है,
और सर नीचे वाले का 25 और कितना है 50 सेम, I- सेंटर सेम है इसका, 50 25 ये 50 25, ये भी 50 25। ओके सर सुनो बोलिए। ना, जो 5वां लाइन था ना वो समझो ना जरा, N050 वाला। टूल लेंथ ऑफसेट ऑन नहीं समझा देखो। नहीं सर। टूल लेंथ ऑफसेट ऑन मतलब अभी तू फॉर एग्जांपल ड्रिल कर रहा है, ड्रिल मशीन से ड्रिल कर रहा है, तो ड्रिल को पुश करता है अंदर डेप्थ में कि उसको खाली लेके हाँ। पकड़े रहता है। पुश करना पड़े। तो ये जो G44 है ना, ये वही काम करता है। अगर वर्कपीस है और ये स्पिंडल कटिंग कर रहा है, तो स्पिंडल ना वेयर एंड टेयर होता है। स्पिंडल यहाँ से कटिंग कर रहा है तो स्पिंडल का वेयर एंड टेयर होता है। अब स्पिंडल को तो मैंने एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट दिया है, वो तो कोऑर्डिनेट से मूव होगा, बट ड्यू टू वेयर स्पिंडल और वर्कपीस में ना हल्का सा गैप आ जाता है। ये गैप इट कैन बी 0.1 ऑल्सो, 0.1 mm का भी गैप आ सकता है। तो उससे क्या होता है, वर्कपीस और टूल का इंटरेक्शन नहीं होगा। तो जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा कटिंग कैसे होगी? तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट वी हैव G44, दैट इज टूल लेंथ ऑफसेट ऑन। समझे बात? हाँ सर। ओके। सर उसके आगे वो N01 लिखा है क्या? Z0 N01 Z0 कहाँ पे दिख रहा है? तो वो G40। Z0 H01 बोल रहे हैं जो अच्छा हाइट 2 mm H है बेटा, H है वो। अच्छा अच्छा। हाँ सर समझ गया सर। चलो दैट इज ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय। Thank you, sir. बाय।